औलाद ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋ ਬਦਦੁਆ। ਨਹੀਂ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣਗੇ। औलाद इस वालिदा को बाहर निकाल देती थी और कहती थी भीख मांग के लाओ और खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। अगर ये बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना को और उस माँ को धक्के दे के निकाला जाए, उस माँ को मारा जाए, तो उस औलाद का क्या हाल होगा? आपको लगता है कि वो दुनिया में इज्जत हासिल करेगी? अली दा ब्याह किया बड़े शाना शौकता नाल। अली मैं तेरियां रोटियां पकान नहीं आई है। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਪੁੱਟੋ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ रोटी ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है। मैं कहा मैं मंगांगी। जब इनको गाड़ी में बिठाया तो आप यकीन करें कि सांस नहीं निकल रहा था हम लोगों का। बहुत ज़्यादा स्मेल थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिन इनको मैं वैसलीन लगा लगा के इनकी मैलें उतारती रही। ट्रेन के आगे रखते हैं ना, उसके 6 पोर्शन बने हुए हैं, तो वो 6 ही सारे फिल करते हैं। तो बैठ के कह रही थी हाय बाजी की खावा, समझ ही नहीं आती भी कसते कदी चीज़ों को वेख्या ही नहीं सी। अल्लाह ने इन्नी नेमत दे दी है। जितनी दफ़ा भी नीचे आती हूँ ना, इनका एक सवाल होता है, बाजी किसी का फ़ोन आया है, बाजी आप हमारी बात करवा दें। रात चलते ही अफ्तारियाँ करवा रहे होते हैं, लोग दुआएं समेटने में लगे होते हैं, अपने बेखबर है। अपनी औलाद इतनी सख्त हो गई है। जिस माँ को हुक्म दिया गया कुरान में कि अगर ये बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना को और उस माँ को धक्के दे के निकाला जाए, उस माँ को मारा जाए और उसकी नाफरमानी की जाए, तो उस औलाद का क्या हाल होगा? आपको लगता है कि वो दुनिया में इज्जत हासिल करेगी या आखिरत में उसे वो मुकाम मिलेगा? इस वक्त मेरे माँ साथ जो मौजूद है, रमज़ान का महीना है और रमज़ान आपको पता है जब भी आता है तो रमज़ान में माएँ अपने बच्चों को दरवाजे खटका खटका के उठाती हैं, बेटा उठो रोज़ा रख लो। माँ वो दिन भी याद करती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है, उस औलाद के बारे में बात करते हैं जो औलाद इस वालिदा को बाहर निकाल देती थी और कहती थी भीख मांग के लाओ और ख़ुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। माँ जी किन्ने बेटे सन? एक अली है, एक बाबर, एक पुट्टो। 3 बेटे सन। 3 बेटे है। ते पुट्टो तो मर गया सी। पुट्टो तो बेचारा दुनिया चला गया। ये हुण रह गया बाबर ते अली। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸ਼ੌਕਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਿਆਹਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਵਿਆਹਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਲਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨੋ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਰਿਆਨਾ। ਰਿਆਨਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਰਿਆਨਾ। ਰਿਆਨਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋਗੇ? ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। 2 ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਕੰਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਟੇਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਪੁੱਟੋ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ? ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਂ ਪਾਉ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਟੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਮੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਾਰਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਆ ਵੇਖੇ ਡਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਚਾਰੂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਬਬ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ? ਮੈਂ 40 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਤੇ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਦੀ ਉਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਗੁਸਾਨੇ ਬਣੇ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 20-30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਹ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਥਰੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ। ਵਾਵਾ ਰਾਤ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੱਤ ਬਣੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਬਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋ ਬਦਦੁਆ। ਨਹੀਂ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣਗੇ अच्छा, माँ का दिल देखें। मैंने ये अल्फाज इस वजह से बोले थे कि मैं देखता हूँ माँ देती है कि नहीं, माँ के साथ क्या सलूक किया गया। माँ के बाजू तोड़ दिए गए, माँ की उंगलियां तोड़ दी गई, लेकिन उस माँ के दिल से भी बददुआ नहीं निकल रही। माँ जी क्यों नहीं देते पे बददुआ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਟ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਡਾਇਆ अच्छा, ਸੀ मेरी गल सुनो, बददुआ क्यों नहीं देते पे बच्चियां नु? ਨਹੀਂ क्यों नहीं देनी? ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇਗਾ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬਦਦੁਆ नहीं ਦੇਈਦੀ नहीं देनी बददुआ। अच्छा, मेरे साथ वो उन्होंने सिला- बहन भी उन्होंने- मौजूद है कि जो इस खातून को वहाँ से लाई थी, किस हालत में मिली थी, इतला कैसे हुई आपको? हमें कुछ चैनल वाले भाई हैं, उन्होंने इनको माँ बनाया हुआ था अपना ना, तो वो बस वो बहुत ज़्यादा तरले करते थे कि आप इनको आपने पास रख लेना। तो हम लोग तो वैसे रिलेशन के बगैर लेते ही नहीं है केस, लोग खुद छोड़ के जाते हैं। तो आपको पता है आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, तो बस खैर साथ अल्लाह पाक का भी हुक्म था, इन्होंने आना था इधर, इनका रिज़्क इधर लिखा था। तो बस हम लोग गए थे इनको लेने, लेडीज़ थी तो वो जेंट्स के साथ तो नहीं हम लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लेके जाना इनको। मेरी अम्मी आई थी कराची से, तो मैं थी साथ। तो बस जब इनको गाड़ी में बिठाया तो आप यकीन करें कि सांस नहीं निकल रहा था हम लोगों का, बहुत ज़्यादा स्मेल थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिन इनको मैं वैसलीन लगा लगा के इनकी मैलें उतारती रही। अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हालत में है काफी। हाँ बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। इनके जब आई थी टेस्ट वगैरह करवाए, ठीक थे, कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह था वो माशाल्लाह। ऑफ स्क्रीन आप बता रही थी कि जब इनके सामने कोई खाना रखते हैं परेशान हो जाती है, कितनी डिशेस भी होती हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रमज़ान इनका पहला ही यहाँ पे, तो ट्रेन के आगे रखते हैं ना, उसके 6 पोर्शन बने हुए हैं, तो वो 6 ही सारे फिल करते हैं। तो बैठ के कह रही थी हाय बाजी की खावा, समझ ही नहीं आती भी कस ते कदी चीज़ां नूं वेख्या ही नहीं सी। अल्लाह ने इन्नी नेमत दे दी है, इन्ना अल्लाह देंदा वे। बाजी मैं तो भुखी बैठी रहनी होनी सा, पैसे जरे इकट्ठे होंदे सी कोई ना कोई चुक के लाई जांदा सी। सैरी में भी यही उठ जाती हैं, रोज़ा नहीं रखती वैसे उठ जाती हैं। तो आपको पता है एज ज़्यादा है तो वो भूख भी लग जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि जिसने खाना है वो बैठ के खा लें। तो कह रही होती हैं हाय बाजी लस्सी भी है, दही भी है, सालन अंडा भी तुसी रखिया है, समझ नहीं आती की खावा। अल्लाह ने कितनी नेमत दे दी है। मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी वालिदैन हैं, कितनी वालिदैन जिनको आप संभाल रही हैं। सुनने में है कि कुछ बच्चे खुद भी अपनी माँ को छोड़ जाते हैं कि हमसे नहीं संभाली जा रही। ऐसे ही है, मैंने बताया ना हम लोग रिलेशन के बगैर नहीं रखते। रिलेशन में वो जो ब्लड रिलेशन है, अपनी औलाद है, बहन भाई हैं, वही छोड़ के जाते हैं। दिल फट नहीं जाता जब देखती हैं कि अपनी औलाद ही माँ को छोड़ के जा रही है? मेरी बात सुने, एक बच्चा जो माँ को घर से निकाल दिया है, वो हमारा दिल क्या फटना, ऊपर अर्श वाले का जो वहाँ पे जो लिखी गई है और जो अल्लाह देख रहा है, होता है दिल तो बहुत ज़्यादा रोता है। उनकी वो ज़िद, उनके प्यार, एक एक आंसू, अगर वो जोड़ा दिया है वो नहीं पहना, मैंने नहीं पहनना, ये मुझे दूसरा दे दें, तो
तो वो दिया तो आंसू निकलना शुरू थे, साथ दुआएं देना शुरू। माएँ आके फिर कहानियाँ सुनाती होंगी कि हमारी बहू हमारे साथ ऐसा सलूक करती है, हमारे बच्चे ऐसा सलूक करते रहे हैं। पहले तो मैं पूछती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिल खुद बड़ा वो अजीब रहता है, पूछती नहीं हूँ। फिर जब वो चुप बैठी होती है, मैं पूछ क्या बात क्या है, बताएं क्या बात है, बताती हैं फिर कि बच्चे बड़े सख्त हैं। पता नहीं अल्लाह पाक। रमज़ान है, उसके बाद ईद आ जाती है, त्योहारों में इनका दिल तो करता होगा अपने बहन भाइयों से मिलने को, बच्चों को मिलने को, लेकिन वो नहीं आते होंगे, उनके इंतज़ार में बैठी रहती हूँ। मेरा ना पोर्शन ऊपर है, मैं अपनी फैमिली के साथ ऊपर होती हूँ। सुबह जब मैं नीचे आती हूँ ना, जितनी दफ़ा भी नीचे आती हूँ ना, इनका एक सवाल होता है, बाजी किसी का फ़ोन आया है, बाजी आप हमारी बात करवा दें। ये लफ्ज़ नहीं मैं ख़त्म कर सकी। 7 साल से मैं ये कर रही हूँ, लाहौर ब्रांच जो है वो मैं 7 साल से कर रही हूँ। ये लफ्ज़ नहीं अंदर से निकाल सकी, इतना प्यार दे के भी बाजी किसी का फ़ोन आया है। अपनों की जो वो आस है ना, वो नहीं ख़त्म हो सकती। ये भी मुझे कहती हैं, मेरी बेटी ने कितना फ़ोन, मेरी धी ने कितना फ़ोन। मैं कहती हूँ मैं ताड़ी धी नहीं, मैं इतना प्यार करके भी मैं ये कोई पूछता भी नहीं है। लोग बाहर रात चलते ही अफ्तारियां करवा रहे होते हैं, लोग दुआएं समेटने में लगे होते हैं, अपने बेखबर है। अपनी औलाद इतनी सख्त हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे ख्याल से जो जन्नत है, जिसके लिए हम लोग सारी ज़िंदगी नेकियां करते हैं, तो अल्लाह ने उनकी माँ के पाँव के नीचे रख दिया, और उस माँ को हम लोग धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं और लोगों में बांटते। फिर आपको लगता है कि फिर हमें जन्नत मिलेगी, फिर क्या होगा? वो दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, और यकीन माने कि जब ये खामोश हो जाते हैं ना, फिर इंसान तरसता है इनका एक लफ्ज़ सुनने को भी। अल्लाह ताला सबका साया हम पर सलामत रखे। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।